اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کی چھوٹی صنعتیں سیزن ہونے کے باوجود کیوں نہیں چل پا رہی۔ مالکان کہتے ہیں لانگ مارچ کے باعث ہمارا صنعت کار کشمکش کا شکار ہے، آج نہیں تو کل اپنی فیکٹریاں بند کرنا پڑیں گی۔ لانگ مارچ تاجروں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ فیصل آباد کی چھوٹی صنعتیں سیزن ہونے کے باوجود نہیں چل پا رہی ہیں۔ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے نائب صدر میاں طارق کہتے ہیں کہ کبھی سیلاب، کبھی رجیم تبدیلی تو کبھی دھرنے اور لانگ مارچ، جس کے باعث ہمارے صنعت کار کشمکش کا شکار ہیں۔ آیا کہ فیکٹریوں کو چلنے دیں یا بند رکھا جائے۔ جن علاقوں میں فلڈ تھا وہاں پہ تھوڑے سے روڈز سیدھے ہوئے ہیں، رستے سیدھے ہوئے ہیں، لوگ اپنی زندگی کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں۔ ابھی شروع ہوئے ہی تھے، یہ گرم والا سیزن شروع ہوا ہی تھا، تو ان لوگوں کی آپس کی سیاسی رسہ کشی، جو ان لوگوں کو اپنی عوام کا تو کوئی فکر ہے ہی نہیں، انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج نہیں تو کل اپنی فیکٹریاں بند کرنا پڑیں گی۔ سیاسی رساکشی کا خمیازہ کاروباری حضرات بھگت رہے ہیں۔ تاجروں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن سیاسی جھگڑے چھوڑ کر ملکی مفاد کا سوچیں۔ یہ ہمارے پیک کے دن ہے، یہ نومبر کا مہینہ 15 اکتوبر سے لے کر 15 دسمبر تک، اس میں اسپیشلی نومبر کا مہینہ یہ پیک کا سیزن ہوتا ہے گرم کا، لیکن وہ لانگ مارچ کی نظر ہو گیا۔ میں ان حکمرانوں سے گزارش کروں گا، خدا را سیاست کریں، سیاست کے ساتھ ساتھ اس عوام کا بھی سوچیں۔ میاں طارق نے مزید کہا کہ ہمارا سیزن چل رہا ہے مگر ہمارا کام نہیں چل رہا۔ کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر سے 15 دسمبر تک ہمارا سیزن ہوتا ہے مگر فیکٹریاں سنسان پڑی ہیں۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب سیاسی عدم استحکام کے باعث کاروباری صورتحال خراب ہونے لگی۔ کاروباری افراد نے ملبہ سیاسی صورتحال پر ڈال دیا، کپاس کی زیادہ قیمت کم کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ کاروبار بحال رکھ سکیں۔ انڈسٹری ہے ہمارا، تو ورک ویئر کا ہے، ایکسپورٹ کا کاروبار، تو 40% جو بزنس ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 4 سے 6 ماہ کے اندر ایک تو باہر ریسیشن بھی آیا ہوا ہے یورپ میں، تو اس کی بھی وجہ سے، دوسرا یہ ڈالر کی جو ہوتی ہے کبھی 240 پہ کبھی 220 پہ، تو یہ ہمیں بڑا پریشان کر رہی ہے۔ تو اوپر سے جو یہ نئی حکومت جو شہباز شریف کی جتنے مہینے ہو گئے ہیں، جو تھوڑا بہت کوئی ریفنڈ آتے تھے، بڑی اچھی اسٹیبلٹی پہ چل رہے تھے، تو وہ بھی اب رکے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سبزیوں، پھلوں اور برائلر مرغی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ رواں ہفتے بھی کمی بیشی کا سلسلہ جاری رہا۔ سبزیوں، پھلوں اور برائلر مرغیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رواں ہفتے میں بھی بیشی کا سلسلہ جاری رہا۔ فیصل آباد میں آلو 83، پیاز 115، ٹماٹر 150، ادرک 335، لہسن 295 روپے میں دستیاب ہوگا، جبکہ مرغی برائلر کی قیمت 354 روپے کلو ہو گئی۔ انڈے فی درجن 239 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں، مٹن 1200 اور بیف 600 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ چنیوٹ میں سبزیوں اور سبز مسالوں کی قیمتوں میں تیزی رہی۔ پیاز 120، آلو 90 روپے فی کلو تک فروخت ہوتے رہے۔ مہنگائی کے مارے شہریوں نے قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر سر پکڑ لیے۔ ادرک لہسن کی قیمت 350، ٹماٹر 200 روپے فی کلو، جبکہ چکن قیمت بھی 360 روپے تک جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہا۔ پیاز 140، ٹماٹر 300 روپے فی کلو اور ادرک کا ریٹ 320 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی، شہریوں نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں جھنگ کے شہریوں کا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار۔ 24 گھنٹوں میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ضلع بھر میں 500 روپے کے جرمانے ہی کر سکے۔ جھنگ میں 24 گھنٹوں میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے 200 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اندرون شہر کے دکاندار من مرضی قیمتوں پر اشیاء خورنوش کی فروخت کر رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے مرکزی مارکیٹوں کی ہی چیکنگ کی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گلی محلوں میں بنی دکانوں پر بھی اشیاء کی قیمتوں کو چیک کیا جائے تو ہی قیمتوں پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کو گزشتہ سالوں کے انکم ٹیکس ری فنڈز گوشواروں میں ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دے دی، مگر 1 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمشنر ایف بی آر سے اجازت لینا لازم ہوگا۔ کمشنر ایف بی آر کی اجازت کے بعد ہی ایڈجسٹمنٹ ہو سکیں گی۔ ٹیکس دہندگان کی جانب سے ایف بی آر کے اقدام پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس پیچیدہ اور مشکل عمل کو آسان بنایا جائے تاکہ ٹیکس دہندگان کے لیے آسانی ہو سکے۔ مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی ڈیڈ لائن میں 31 اکتوبر سے توسیع نہیں ہوگی۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वाफ़ कर दिया। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर इनफरादी तौर पर दरख्वास्त जमा करवाने वालों को तौसी की इजाज़त कमिश्नर FBI देंगे। मुताल्लिका अफराद गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी के लिए कमिश्नर FBI को दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जबकि बाकी नॉन फाइलर्स को जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में मरीजों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब का एडहॉक पर 30 डॉक्टर्स रखने का फैसला। डॉक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इंटरव्यूज 1 नवंबर को होंगे। नए डॉक्टर्स की तैनाती से अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे में आसानी होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, फेस्को की अदम तवज्जही के बायस फैसलाबाद के नरवाला रोड 29 मोड़ के करीब रोड पर झुके हुए बिजली के खंभे बड़े हादसे को दावत देने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नरवाला 29 मोड़ पर झुके खंभे फेस्को की नजरों से ओझल हो गए, बड़े हादसे को दावत देने लगे। मसरूफ रोड पर झुके खंभे बड़ी गाड़ियों से टकराने का खदशा पैदा हो गया। शहरी कहते हैं 3 साल से खंभे इसी तरह झुके हुए हैं। मुतअद्दिद मर्तबा शिकायत दर्ज कराई, लेकिन फेस्को ने कोई सुनवाई नहीं की। शहरियों ने फेस्को से झुके खंभों के मुतबादिल खंभे लगाने का मुतालबा कर दिया। नरवाला 29 मोड़ के रिहायशी खौफ की फिजा में रह रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में महकमा बिल्डिंग एंड रोड के अनोखे काम अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करार दे दिया। सिविल लाइन में सिविल सिस्टम न होने की वजह से रोड के साथ वाटर ड्रेन को मंसूबे में शामिल किया गया। महकमा बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट के अनोखे काम सामने आ गए। महकमा बिल्डिंग अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करार दे दिया। सिविल लाइन में सेवरी सिस्टम ना होने की वजह से रोड के साथ वाटर ड्रेन को मंसूबे में शामिल किया गया था, जो कि ठेकेदार की जानिब से ना बनाया गया। शहरियों का कहना है कि वाटर ड्रेन ना होने की वजह से बारिशों के बाद पानी रोड पर खड़ा हो जाता है। ये सिविल लाइन जो कि जिला झंग का एंट्री है, ये बहुत अहम सड़क है। यहाँ पर साल से पानी खड़ा रहता था, जिसका असली बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो बहुत नाकारा हो गया और ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब लाखों रुपए मालिया से बनाया गया रोड चंद माह में ही टूट फूट का शिकार हो गया। शहरियों ने महकमा पर इल्जाम आयद किया कि 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। जो नाला साथ बनाना था वो भी नहीं बनाया गया, और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। वो सड़क अभी मुकम्मल ही नहीं हुई तो पीछे से उखड़नी भी शुरू हो गई है। लाखों रुपए मालिया से बनाया गया रोड चंद माह में ही टूट फूट का शिकार हो गया, मगर महकमा बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट खामोश है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और यहाँ आपको बताएं, बल्दियाती एक्ट की बहाली तो हो गई, मगर बल्दियात के हवाले से लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। इंतखाबात कब होंगे ये ऐलान भी न हो सका। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान मायूसी का शिकार होने लगे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं वो बुनियादी जमहूरियत के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है और बल्दियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। और आप देख लें कि किसी भी पार्टी में, खा को हुकूमती पार्टी है, खा अपोजिशन की पार्टी है, उसके एजेंडे में बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती अदारों को इख्तियारात देना शामिल ही नहीं है। हाँ, जब भी वो हुकूमतों में आप तजर्बा कर लें कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे मैं बल्दियात को बड़ा बाइख्तियार करूँगा, बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए सारे फंड दूंगा, MNA MPA को कोई ग्रांट नहीं दूंगा क्योंकि ये एक करप्शन का ज़रिया होती है। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने बिल्कुल इसके उल्ट किया है और आते ही बल्दियाती इदारे जो कि अवाम के वोटों से इलेक्ट हुए थे उनको ख़त्म कर दिए गए हैं और वो तमाम के जो बल्दियात के इख्तियार थे उन्होंने MNA MPA के सुपुर्द किए और फंड भी सारे के सारे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर लाहौर में यूथ वर्कर्स कन्वेंशन। झंग से भी जमात इस्लामी के रहनुमाओं और नौजवान वर्कर्स की बड़ी तादाद काफिले की सूरत में लाहौर पहुंच गई। ग्रुप लीडर डॉक्टर अब्दुल जब्बार, जिले सदर अलखिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी, अमीर शहर मीर कासिम न्याजी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मौजा चेला, अकड़ियाँ वाला, कोट ईसा शाह, कोट शाकिर, रोडू सुल्तान, सूफी मोड़, काली चौक समेत दीगर इलाकों से भी काफिले लाहौर पहुंचे। जमात इस्लामी की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हम आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और JI यूथ की क़यादत के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर मीनार पाकिस्तान में जा रहे हैं, जहां यूथ कन्वेंशन लीडर हो रहा है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं वो 13 चोर मुर्दाबाद मेरा चोर जिंदाबाद वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीनार पाकिस्तान के ऊपर सिराजुल हक साहब की क़यादत में पाकिस्तान के लाखों नौजवान इकट्ठे होकर
ये अज़्म करने जा रहे हैं कि हमने मुल्क को एक साफ सुथरी क़यादत देनी है। काफिले में शरीक जमात इस्लामी के रहनुमाओं की जानिब से महंगाई और अवाम को दरपेश मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए जमात इस्लामी वाज़ेह मंशूर पेश करेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि जमात इस्लामी की कॉल पर, सिराजुल हक साहब की कॉल पर हमारी तवक्कुआ से कहीं ज़्यादा बढ़कर नौजवान जो है वो रिस्पांस दे रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से अज़्म का इजहार किया गया कि जमात इस्लामी अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरकर मसाइल के हल बारे इक़दामात मुमकिन करेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब अहमदपुर सयाल में साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा मेहर अली इरफान और मेहर असद अब्बास की वालिदा का खत्म शरीफ अदा कर दिया गया। खत्म शरीफ में MPA राना शहबाज अहमद, उम्मीदवार MNA अमीर अब्बास सयाल, सीनियर सहाफ़ी शहजादा अली जुल्करनैन, सियासी और समाजी शख्सियत नईम अजहर, सदर गढ़ महाराजा प्रेस क्लब अमार यासिर, सीनियर सहाफ़ी नवीद अंजुम समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रीयूनियन तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रीयूनियन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीन डॉक्टर कमर बिलाल कहते हैं, रीयूनियन करने का मकसद एनिमल हस्बेंड्री में अपने तज्जिया कार प्रोफेसर की मदद लेना है। तो आज हमने फर्स्ट टाइम इन सारे दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट किया है। जस्ट इट इज़ वन सॉर्ट ऑफ रीयूनियन। पाकिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है, उनको मिल के एज ए टीम उस चैलेंज को पूरा कर सके। इस मौका पर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राना इकरार खान ने खसूसी शिरकत की। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीजुर रहमान और डॉक्टर यूसुफ फहीम अजीज, प्रोफेसर डॉक्टर नजीर और डॉक्टर मेहरुन्निसा ने शिरकत की। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मंसूर इलाही ने भी शिरकत की और कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया है। अपने पुराने दोस्तों और टीचर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ की इंतहाई दिली खुशी हुई, अपने पुराने दोस्तों से मिले, अपने असातिज़े किराम पुराने से भी मिले और आजकल जो वर्किंग टीचर्स हैं उनके साथ मिले। ऐसी तकरीब का इनेकाद करना चाहिए ताकि इनके जरिए एनिमल फैकल्टी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम भी किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में इतवार का दिन बच्चों की मस्ती का दिन बन गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद इतवार का दिन बच्चों की मस्ती का दिन है। बच्चों की स्कूल से छुट्टी हुई तो पार्क्स की तरफ रुख कर लिया। कोई दोस्तों के साथ तो कोई बाबा के साथ पार्क आ पहुंचा। आज छुट्टी का दिन है, आज बहुत मजा आ रहा है। हमने फुटबॉल भी खेला है, बैट बॉल भी खेली है और क्रिकेट भी खेलने लगे हैं। मैं अपने बाबा साथ आया हूँ। मैंने क्रिकेट भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। झूले लिए, क्रिकेट खेली और बच्चों ने मस्तियां की। वालिद कहते हैं बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं और पार्क्स आने के लिए बहुत खुश होते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी जो होती है, संडे के दिन फ्रीडम होती है, कुछ एंजॉय हो जाता है जी, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उठ जाते हैं, रात को भी कहना शुरू हो जाते हैं सुबह जाना है, एंजॉय करना है। बच्चे अपनी छुट्टी के दिन को खूब एंजॉय करना जानते हैं, मजे करते हैं और बहुत सारे झूले लेकर एंजॉय करते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, मौसम बदला, गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई। महंगाई के दौर में सस्ते मलबूसात की सहूलत के लिए लंडा बाजार सज गया। लंडा बाजार में सर्दी के सस्ते मलबूसात दस्तयाब हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में लंडा बाजार बड़ी सहूलत है। सर्दी के मलबूसात की सस्ती सहूलत से लोगों को गर्म मलबूसात बआसानी मिल रहे हैं। चीज भी अच्छी मिल जाती है और सस्ता भी काफी है। बाकी बाजारों में बहुत ज्यादा महंगाई है, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। लंडा फरोख्त करने वालों का कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ लंडा बाजार में रश बढ़ा है। शहरी महंगाई की वजह से लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। सब बाजारों से इधर हर जो दुकानदार है ना, उसका सौदा सस्ती है, ठीक है। दूसरे लोगों को हम ये मैसेज देना चाहिए कि इधर लंडा बाजार में जो सामान लोग बेचे ना, वो सब सस्ती बेचे। लंडा बाजार में म्यारी और सस्ते गर्म मलबूसात इंतहाई कम रेटों पर दस्तयाब है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्बास अली, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, करेंसी नोट और कदीमी सिक्के जमा करना एक महंगा शौक है। समंदरी के शहरी ने 26 साल में 400 से ज्यादा नायाब सिक्के और 100 ममालिक के करेंसी नोट जमा कर लिए है कि वो गुज़िश्ता 26 साल से ये मशगला अपनाए हुए हैं। शाहिद इकबाल का दावा है कि उनके पास खिलाफत उस्मानिया और मुगलिया दौर के नायाब सिक्के भी मौजूद हैं। 25 साल का ये मेरा हॉबी है। ये सिक्के मैंने बहुत दूर से मंगवाए हैं, दूसरे मालिक से मंगाए हैं। ये मैंने इकट्ठे किए हैं खुद। ये रियल सिक्के हैं, यूनिक सिक्के हैं।
शाहिद इकबाल ने 100 से जायद ममालिक के करेंसी नोट भी जमा कर रखे हैं। शाहिद इकबाल ने यह भी दावा किया कि उनके पास पाकिस्तान बनने से अब तक के करेंसी नोट मौजूद हैं। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान के सिक्के जमा किए और आस्ता आस्ता शौक मेरा बढ़ता गया, सिक्के बढ़ते गए, शौक भी बढ़ता गया। अब मेरे पास 200 ममालिक के सिक्के हैं जो कि बंद हो गए हैं, ओल्ड सिक्के मेरे पास, और 100 ममालिक के नोट मेरे पास हैं। नवारदात और कीमती अशिया जमा करना न सिर्फ वक्त तलबी बल्कि एक महंगा शौक भी है। बाज़ औक़ात एक काम से सिक्के की कीमत भी लाखों में पहुंच जाती है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में निजी होटल के ज़ेरे एहतमाम खवातीन के लिए गोलगप्पे चैलेंज का इनेकाद किया गया। गोलगप्पे चैलेंज में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन का मनपसंद खाना गोलगप्पे हों और वो खुद को रोक सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 मिनट में सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने वाली खातून को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। 1 मिनट के अंदर 15 गोलगप्पे खाए और आई विन दैट कंपटीशन। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पसंद है गोलगप्पे बहुत ज्यादा। दूसरे नंबर पर आने वाली खातून को 10,000 रुपए इनाम दिया गया। इवेंट ऑर्गेनाइजर महानूर कहती हैं कि घरेलू खवातीन के लिए ऐसे इवेंट होने चाहिए। खवातीन का मनपसंद खाना गोलगप्पे हैं तो वो बड़े शौक से खाती हैं। एज अ ऑर्गेनाइजर बॉम्बे चपाती हमेशा से लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि वो मेरे साथ ऐसे ही क्लैप करके लेडीज को आगे करेंगे। गोलगप्पे भी खूब खाए और मेला भी जीत लिया। ऐसे इवेंट से खवातीन लुत्फानंदोज होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।